Hello everybody, we'll continue with ionic equilibrium. We were doing salt of weak acid and weak base. Now we'll do examples of weak acid and weak base. Weak acid, weak base में explain the nature of ammonium acetate. और ammonium acetate is neutral in nature. Explain. अभी बोलोगे ammonium acetate when reacts with water form weak acid, acetic acid, and weak base ammonium hydroxide. Now acid being weak dissociate partially. Base is weak, therefore dissociate partially. Now in this case, K value of acetic acid is 1.8 into 10 raised to minus 5, and Kb value of ammonium hydroxide is also same, 1.8 into 10 raised to minus 5. As their K and Kb values are equal, solution is neutral. Therefore there are equal number of H ions and OH ions in the solution, and therefore solution is neutral. pH of solution is 7. Everybody understood? तो यहाँ पे ना देखो, अभी ये पार्शियली डिसोसिएट हुआ, ये भी पार्शियली डिसोसिएट हुआ, पर वहां पे थोड़ा एसिड भी रहेगा, थोड़ा बेस भी रहेगा, और ये हाइड्रोलाइज हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का डेफिनेशन क्या है? कैटायंस और एनायंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड और बेस. तो यहाँ पे सोल्यूशन में एसिड भी बन रहा है, बेस भी बन रहा है, पर जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना, तो दोनों कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. तो सोल्यूशन में ना एसिड है ना बेस है, क्योंकि दे आयोनाइज कंप्लीटली. पर वीक एसिड वीक बेस जब डिसोसिएट होगा तो दे डिसोसिएट पार्शियली, और उसके अंदर थोड़ा एसिड भी होता है, थोड़ा बेस भी होता है. ओके, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन है, और इनके के बी वैल्यूज इक्वल है, और इसीलिए ये सॉल्ट न्यूट्रल है. सबको समझा? So question is, why ammonium acetate is a neutral salt? Explain or give reason. So ammonium acetate when react with water forms weak acid, acetic acid, and weak base ammonium hydroxide. Acid being weak dissociate partially. Base being weak dissociate partially. Here we say the K and Kb values of ammonium acetates are acetic acid and ammonium hydroxides are equal. As their K and Kb values are equal, there are equal number of H ions and OH ions, and therefore solution becomes neutral, and the pH of solution becomes 7. Is it clear? अभी देखो, इसी में दूसरा एग्जाम्पल करेंगे, वीक एसिड वीक बेस में ही दूसरा एग्जाम्पल है. ये 3 टिपिकल एग्जाम्पल्स है वी हैव टू डू. हाँ, यहाँ पे ये भी याद रखना है, लिटमस पेपर शो नो एक्शन ऑन अमोनियम एसिटेट. तो अगर ये भी पूछा ना क्वेश्चन में, तो भी पूरा ऐसे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा. Why ammonium acetate is a neutral salt? Why pH of solution in ammonium acetate is 7? Or why litmus paper show no action on ammonium acetate? तो एक्सप्लेनेशन ये पूरा ही देना पड़ेगा, और यहाँ पे ये वैल्यूज लर्न करनी है. दिस वैल्यूज वी हैव टू लर्न. एसिटिक एसिड की के वैल्यू और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की के बी वैल्यू, ये लर्न करो, ये नीट जेई में भी हेल्पफुल है. ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो. वीक एसिड वीक बेस में अमोनियम साइनाइड. अभी अमोनियम साइनाइड में बोलोगे व्हेन अमोनियम साइनाइड सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म वीक एसिड एंड वीक बेस. अभी हाइड्रोजन साइनाइड इज वीक एसिड, therefore dissociate partially. Ammonium hydroxide is a weak base, dissociate partially. पर यहाँ पे क्या होता है मालूम है? देखो HCN की Kb वैल्यू है 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 10, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की Kb वैल्यू 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 5. चलो टेल मी ना विच इज ग्रेटर, K ग्रेटर है कि Kb ग्रेटर है? हाँ शादाब, करेक्ट. व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ वेरी गुड, चलो करेक्ट. हाँ, Kb value is greater than Ka value, therefore solution will become what? Acid or base?
हाँ, वेरी गुड. ओके, solution will become basic, है ना? Yeah. Okay, so kb value is greater than ka value, therefore there will be more OH ions than H ions in the solution, therefore solution will become basic, and pH of solution will be more than 7. Okay, and what will be effect of litmus paper? Red will turn blue. Red litmus will turn blue out here. Everybody followed. पर यहाँ पे देखो, अभी ये तो हमने Kb तो पहले ही लर्न किया था, अभी K वैल्यू ऑफ HCN भी हमको लर्न करना पड़ेगा. 4 into 10 raised to minus 10 हाइड्रोजन साइनाइड. ओके, तो K वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.8 into 10 raised to minus 5. Kb वैल्यू ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1.8 into 10 raised to minus 5. अगर एग्जाम में इन केस ये भूल गए वैल्यूज, तो खाली इतना लिख देना Kb इज ग्रेटर देन K, बस चल जाएगा. पर बेटर है कि याद रखो, अगर भूल गए तो कुछ भी उल्टा सीधा वैल्यू मत लिखना, खाली ये लिख देना Kb ग्रेटर देन K, चलेगा, मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, पर नीट जेई वाले स्पेशली याद रखो, ये वैल्यूज हमको काम आने वाली है. 4 वैल्यूज ही लर्न करनी है, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और एक हाइड्रोजन फ्लोराइड की. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट और एक एग्जांपल करते हैं. अमोनियम साइनाइड, हम लोगों ने अमोनियम एसिडेट किया, अभी अमोनियम साइनाइड. अभी हम करेंगे अमोनियम फ्लोराइड. अमोनियम फ्लोराइड इज अ बेसिक इन नेचर. एक्सप्लेन. अमोनियम फ्लोराइड salt when react with water form weak acid hydrogen fluoride and weak base ammonium hydroxide. Acid being weak dissociate partially, base being weak dissociate partially. Now there are, हाँ अभी वापस से Kb values. K value of HF is 7.2 into 10 raised to minus 4 and Kb वैल्यू उसकी सेम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, 1.8 into 10 raised to minus 5 है. ये 10 raised to minus 5 है. ठीक है, so which is greater now? ओम इनकरेक्ट है. हाँ, यश इनकरेक्ट है, मैंने क्वेश्चन इनकरेक्ट लिखा था ना इसके लिए. हाँ हाँ, यहाँ पे वैल्यूज कंपेयर करोगे तो Ka इज ग्रेटर देन Kb. ठीक है ना, ये यश और ओम है ना, क्वेश्चन बेसिक इन नेचर लिख दिया, इसलिए क्वेश्चन गलत था तो यहाँ पे बेस बता रहे. ये 10 रेस टू माइनस 4 है और 10 रेस टू माइनस 5 है ये. हाँ नहीं नहीं, वो क्वेश्चन गलत लिख दिया है मैंने, इट इज एसिडिक सॉल्ट आएगा, है ना. तो H ions will be greater than OH ions. Okay, therefore solution is acidic, है ना. हाँ, wait, I'll correct that. Okay, see I corrected the question. Ammonium cyanide is acidic in nature, explain करना है. So when salt react with water will form weak acid and weak base. Acid being weak dissociate partially, base being weak dissociate partially, but K value of HF is more than Kb value of ammonium hydroxide. As K is greater than Kb, there are more of H ions than OH ions in the solution. Therefore, solution is acidic. pH will be less than 7 now. Huh? pH will be less than 7 and blue litmus will turn red. pH of solution will be less than 7 and blue litmus will turn red. ठीक है, सबको समझा. तो weak acid, weak base undergo hydrolysis, but there are 3 type of salt. अगर Ka greater than Kb हुआ तो acidic, Kb greater than K हुआ तो basic, और दोनों इक्वल हुआ तो न्यूट्रल. और एग्जांपल में न्यूट्रल में एक ही है अमोनियम एसिटेट, फिर बेसिक में अमोनियम साइनाइड और एसिडिक में अमोनियम फ्लोराइड. हाँ, यहाँ पे सॉल्ट में भी अमोनियम
फ्लोराइड ही लिखना है ना, अमोनियम फ्लोराइड। Okay, ammonium fluoride salt. Is it clear? All this is fine. Any difficulty? Okay. चलो अभी आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है ऐसे, सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन। व्हाई? क्वेश्चन आता है व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। स्टॉक सॉल्यूशन मतलब बहुत सारा कॉपर सल्फेट बनाना है। While preparing stock solution of copper sulfate, we add sulfuric acid. Give reason. अभी ये कॉन्सेप्ट पे ही काम करेगा, ऐसे ही समझाना है। कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, अभी क्योंकि यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 है इसलिए पूरा रिएक्शन डबल करना पड़ता है, ये 2 बार लेना पड़ता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनती है वीक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और कॉपर हाइड्रोक्साइड है वीक बेस। ओके देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वीक बेस, अभी सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, पर कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस है तो पार्शियली डिसोसिएट होगा। ओके ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, ये पार्शियली डिसोसिएट होने की वजह से कॉपर हाइड्रोक्साइड ये रिवर्स हो जाता है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट एक्यूमुलेट हो जाता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट फीबली, फीबली मतलब वेरी लेस। Being insoluble, it slowly precipitates. तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनने लग जाता है। अगर आयोनिक रिएक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर विल गिव यू दिस। ना कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होने लगता है बिकॉज इट डिसोसिएट वेरी स्मॉल एक्सटेंट। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट अक्यूमुलेट हुआ। हाँ अभी तुमने है ना इसके अंदर और सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो ली चार्टिलियस प्रिंसिपल, देखो ये एच आयंस बढ़ जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो ली चार्टिलियस के हिसाब से क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट लेफ्ट साइड, और ये कॉपर सल्फेट का जो डिसोसिएशन है वो प्रेसिपिटेशन है वो कम हो जाएगा और वो कॉपर सल्फेट के फॉर्म में रहेगा। सो इन एसिडिक मीडियम हाइड्रोजन आयंस, due to hydrogen ions according to Lee-Chartier's principle, the hydrolysis equilibrium is shifted। ये हाइड्रोलिसिस का जो इक्विलिब्रियम है ये शिफ्ट लेफ्ट साइड हो जाएगा। The precipitation of copper hydroxide is prevented। ठीक है ना, sulfuric acid is added to avoid precipitation of hydroxide, copper hydroxide। सबको समझा? Any difficulty? ओके चलो फिर से एक बार ध्यान दो, क्वेश्चन आएगा कॉपर सल्फेट बनाते वक्त add little sulfuric acid, so while preparing stock solution, stock मतलब बहुत सारा, stock solution of copper sulfate, why we add sulfuric acid? तो बोलना है copper sulfate dissociate to form strong acid sulfuric acid and weak base copper hydroxide। sulfuric acid is strong so dissociate completely, copper hydroxide is weak, dissociate partially। Now because it dissociate feebly, copper hydroxide precipitate its form। Okay, copper hydroxide dissociates slowly and therefore slowly it precipitates। अभी आयोनिक रिएक्शन देखोगे, ये इसी का आयोनिक रिएक्शन देखोगे तो ऐसे हो जाएगा, सल्फेट कॉमन है तो हमने कैंसिल कर दिया तो ये ऐसे आ गया। अब ये कॉपर हाइड्रोक्साइड को निकालना है तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, ली चार्टिलियस के हिसाब से इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ जाएगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट डिसअपियर होते जाएगा। ठीक है,
तो इन एसिडिक मीडियम ड्यू टू हाइड्रोजन आयन्स अकॉर्डिंग टू ली चार्टिलियस प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रिवेंटेड. Thus, sulfuric acid is added to avoid precipitation of copper hydroxide. सबको पूरा समझा ये मैटर? Any difficulty in this? You all are following what I'm talking? Say yes or no. अरे चैट ही नहीं आ रहा है. ठीक है, चलो next one. Now same type of question is there. Ferric chloride. Solution becomes turbid. Turbid मतलब ऑयली लेयर डेवलप हो जाता है, प्रेसिपिटेट डेवलप हो जाता है. Why? How is this clear solution obtained? Explain. अभी फिर से फेरिक क्लोराइड में, हाँ, फेरिक क्लोराइड में तुम बोलोगे फेरिक क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड वीक बेस फेरिक हाइड्रोक्साइड. अभी स्ट्रॉन्ग एसिड बिंग स्ट्रॉन्ग डिसोसिएट कंप्लीटली, हाँ यहाँ पे H और Cl आएगा, हाँ, और फेरिक हाइड्रोक्साइड बिंग वीक डिसोसिएट पार्शियली, यहाँ पे भी फेरिक और OH आएगा, ठीक है ना. अभी फेरिक हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट्स फीबली एंड बीइंग इनसोलेबल इट स्लोली प्रेसिपिटेट, ठीक है ना. नाउ आयोनिक फॉर्म में लिखोगे तो ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगा, फिर से क्लोराइड आयन कैंसल हो गया. अभी फिर से यहाँ पे क्या ऐड करोगे, HCl. जितना ज्यादा HCl ऐड करोगे हाइड्रोजन आयंस बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा और फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट प्रिवेंट होगा. सो इन एसिडिक मीडियम ड्यू टू हाइड्रोजन आयन्स, ली चार्टिलियस प्रिंसिपल, द हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट. The precipitation of ferric hydroxide is prevented. HCl is added to avoid the precipitation of ferric hydroxide. ये समझा सबको? Same way like sulfuric acid is added to copper sulfate, here we add HCl to the stock solution of ferric hydroxide. Okay, so everybody got this? Ferric chloride when reacts with water forms strong acid hydrochloric acid and weak base ferric hydroxide. Strong acid dissociates completely, but ferric hydroxide is weak, so dissociate partially. Now because it dissociates partially, ferric hydroxide precipitate is developed. Okay, so ferric hydroxide dissociate partially and therefore it slowly develops a precipitate. So here what we do when we write in ionic form, we learn that as we increase hydrogen ions, equilibrium will shift towards left and ferric hydroxide precipitate will be prevented. So adding more of hydrogen ions means indirectly adding more of HCl, equilibrium will shift to left according to Lee Chartelis principle and ferric hydroxide precipitate is prevented. तुमको मालूम है ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट किए हो तुम लोग लेबोरेटरी में? ब्राउन रिंग टेस्ट करते वक्त फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट ही यूज करते हैं. अगर हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं लिया ना तो यही रीजन होता है कि ऐसा जो स्टॉक सोल्यूशन होता है ना उसमें टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब ऑयली लेयर डेवलप हो जाता है. सो ये टर्बिडिटी इज नथिंग बट ऑयली लेयर गेट डेवलप. तो वो ऑयली लेयर जब तुम ब्राउन रिंग में डाल दोगे तो पूरा रिंग डिस्टर्ब हो जाएगा. तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टॉक सोल्यूशन लेते हैं, ऐसा नहीं ले सकते, ठीक है ना. तो इसलिए कुछ कुछ टेस्ट में जैसे फिनॉल में भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड चाहिए, यहाँ पे भी जो ब्राउन रिंग टेस्ट है उसमें भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट ही चाहिए. तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसलिए लेते हैं कि कुछ कुछ सोल्यूशन में ऐसे टर्बिडिटी या ऑयली लेयर डेवलप हो जाता है, तो फिर उनको प्रिवेंट करने के लिए या तो एक्सेस ऑफ HCl या H2SO4 वैसा सब ऐड करना है, या तो फिर फ्रेशली ले लो तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा. इज इट क्लियर? So that is why we do that. And all this is understood. ये stock solution prepare करते वक्त हम यहाँ पे HCl क्यों ऐड कर रहे हैं, वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं,
तो ये सब गिव रीजन के फॉर्म में पूछते हैं और नीट जेई में भी ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वो याद रखने हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं अभी। बफर सॉल्यूशन, पार्ट 5 is buffer solution. Now what a buffer solution? Okay, buffer solutions are the solutions which resist drastic change in pH upon addition of small amount of acid or base, or on dilution, or on long standing मतलब store for long time. तुम बफर सोल्यूशन है ना, एक तरह के प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? जो हम खाने वगैरह में डालते हैं कि वो खराब ना हो। तुमको मालूम है खाना खराब क्यों हो जाता है? कैन एनीबडी टेल मी फूड आइटम्स वगैरह खराब क्यों हो जाती है? व्हाई डू फूड गेट स्पॉइल्ड? चलो गिव मी रीजन। हाँ, acted upon by bacteria or NCDT, या what happens? ओके, देखो फूड में ना बैक्टीरिया नहीं हुए तो खाना खराब होगा कि नहीं खराब होगा शादाब? ओके, चलो ध्यान दो। हाँ, तो क्या होता है एक्चुअली, एंजाइम्स एक्टिव होते हैं फूड में, है ना? तो वो एंजाइम्स है ना फूड को डिग्रेडेट करते रहते हैं। ठीक है, और उसमें वो एसिड का कंटेंट बढ़ाते जाते हैं। जितना स्टेल फूड खाओगे उसमें एसिड का कंटेंट ज्यादा होता है, और वो खाना खाने से एसिडिटी भी बढ़ जाती है। तो बफर सोल्यूशन क्या करते हैं, वो फूड को न्यूट्रलाइज करते जाते हैं। जो पीएच है ना वो पीएच मेंटेन करके रखते हैं। तो प्रिजर्वेटिव का काम है, ये बफर सोल्यूशन मतलब प्रिजर्वेटिव का काम है पीएच चेंज होने नहीं देना। तो देखो बफर सोल्यूशन क्या कर रहे हैं, दे रेजिस्ट द चेंज इन पीएच when small acid or small base is added, or when you dilute it, or when you store for long time। ये तीनों ही केस में बफर सोल्यूशन पीएच चेंज नहीं होने देते। और क्योंकि अगर पीएच चेंज नहीं होगा तो खाना खराब नहीं होगा। पर हम लोग हर फूड पैकेट पे एक्सपायरी होती है, तो जब उसमें बफर है तो एक्सपायरी क्यों डालते हैं? क्योंकि बफर भी तो हम लिमिट में ही डाल पाएंगे ना। जैसे जैसे एसिड का कंटेंट बढ़ते जाएगा बफर उसको न्यूट्रलाइज करते जाएगा, पर हम बफर लिमिट में डालते हैं तो उतना ही बफर होगा फूड के प्रोपोर्शन में कि वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, वरना पूरा खाना तो बफर से ही भरा पड़ जाएगा फिर। इज इट क्लियर? तो बफर भी लिमिट अमाउंट में 1 ग्राम 2 ग्राम 1% उतना ही बफर हम डाल सकते हैं, और वो उसको टाइम मतलब कितना एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसके हिसाब से हम उसको न्यूट्रलाइज करते जाते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ी देर तक स्टोर कर सकते हैं। और ये प्रिजर्वेटिव पीएच चेंज होने नहीं देते और इसलिए फूड मेंटेन रहता है। पर अगर बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो गया तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू तो लॉस्ट हो गई पूरी, तो उसको खा के भी कुछ फायदा नहीं है और उसको प्रिजर्व करके भी कुछ फायदा नहीं है। और इसीलिए ये बफर सोल्यूशन ऐसे एक्ट करते हैं कि उसको हम थोड़े टाइम तक हम उसको खींच सके। ठीक है ना? सो बफर सोल्यूशन का हम कॉन्सेप्ट समझा। दे आर द सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच on addition of small acid small base, on dilution, or on long standing मतलब preserving for a long time। ओके, अभी स्मॉल एसिड स्मॉल बेस हम नहीं ऐड कर रहे हैं, एक्चुअली अंदर से ही प्रोड्यूस हो रहा है, पर वो उसको खराब होने नहीं देता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल एसिड और स्मॉल बेस। ना बफर सोल्यूशन 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। बफर सोल्यूशन है एसिड बफर सोल्यूशन,
Acid buffer solutions are made up of weak acid and its salt should be with strong base. जैसे एसिडिक एसिड खुद वीक है पर उसका जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब सोडियम के साथ है. बेसिक बफर, हाँ, and they maintain pH less than 7. Basic buffer are made up of weak base and its salt should be with strong acid. So ammonium hydroxide is a weak base पर उसका जो salt है वो strong acid के साथ होना चाहिए. Ammonium chloride is a strong acid. They maintain pH of solution more than 7. And single salt buffer, they are made up of salt of weak acid and weak base. Acetate ions are weak acid and ammonium ion is weak base and they maintain pH at 7. तो अगर तुमको किसी भी चीज में, खाना में या तो फूड प्रोडक्ट या तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, बियर एंड वाइन इंडस्ट्री, ये सब में बफर सोल्यूशन काम करता है. तो जहां पीएच 7 से कम रखना है तो हम एसिड बफर डालेंगे. जहां पीएच को 7 से ज्यादा रखना है तो हम बेसिक बफर डालेंगे. और न्यूट्रल बफर मतलब पीएच 7 रखना है तो हम न्यूट्रल बफर डालेंगे, सिंगल सॉल्ट बफर. हाँ, लाइक इन एन एरिएटेड ड्रिंक, सब जगह पे जितनी भी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है, जेन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जैम, पिकल, सॉस, तुमने उनकी बॉटल पे पढ़े होंगे सोडियम बेंजोएट, सोडियम सिट्रेट, विनेगर. विनेगर इज नथिंग बट एसिडिक एसिड, सो इट इज अ बफर सोल्यूशन. समझ आ रहा है? तो ये बफर सोल्यूशन एक तरह के प्रिजर्वेटिव है और ये बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी मतलब फूड प्रोसेसिंग कंपनीज वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होते हैं. मिल्क को प्रिजर्व करना है, फिर ब्लड प्रिजर्व करना है. ओके, ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करने के लिए भी ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन, मिल्क इज ऑल्सो स्लाइटली अल्कलाइन. 7.4 7.5 उनका पीएच है. तो वो मेंटेन करने के लिए हमको बेसिक बफर उनके अंदर डालने पड़ते हैं. इज इट क्लियर? So buffer solutions are the solutions which resist change in pH on addition of small amount of acid or base or on dilution. हमको मालूम है डाइल्यूट करने पे हाइड्रोजन आयंस, OH आयंस बढ़ जाते हैं तो सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक हो जाएगा क्योंकि आई टोल्ड यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन. तो जितना डाइल्यूट करोगे उतना एसिड बेस स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे. ठीक है ना? तो उनका पीएच चेंज होने नहीं देंगे. और ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब स्टोरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो बफर सोल्यूशन पीएच चेंज होने नहीं देते. क्वेश्चन आता है व्हाट आर बफर सोल्यूशन, गिव द टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन एंड हाउ आर दे प्रिपेयर्ड. तो हम लोग बोलेंगे बफर सोल्यूशन का डेफिनेशन, टाइप में बोलोगे acid, base or single salt buffer. How are they prepared? Acid buffer solution is made by mixing weak acid and its salt with strong base. Basic buffer are made by mixing weak base and its salt with strong acid. उसका जो salt हो वो strong acid के साथ होना चाहिए. Single salt buffer are made up of salt of weak acid and weak base. Is it clear? Chalo, we'll stop here today.